तो शुरू करें ना जी, मेरी तरफ से तो जी। Very good evening, participants. Now in the next session, we are having another very esteemed professor from Jamia Millia Islamia, Dr. Jasim Ahmad Sahab. He is the professor in Department of Teachers Training and Non-Formal Education, Jamia Millia Islamia, Jamia New Delhi. Sir have a long experience of more than 20 years of teaching and research in Department of Education, and he has started his career from Department of B.Ed, Shivli National PG College, Azamgarh Veer Bahadur Singh University, which is popularly known as Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh. I am going to introduce sir in a very brief because sir has a very, I will say, the big his curriculum vitae. Sir did his PhD from Purvanchal University, Jaunpur, UGC NET, M.Ed from Jamia Millia Islamia, B.Ed from the Jamia Millia Islamia, and he is MSc in Geology, BSc and BSc Honors and BSc Pass. As far as Sir contribution and research contribution is concerned, in this young age, Sir has published more than 12 books, such as Teaching of Biological Science and Educational Technology, Computer Education and Curriculum Pedagogy, Inclusive Education, and you will find many more such books. So, apart from this, as far as his research papers and articles are concerned, he has published more than 5 dozen, around 70 research papers on different topics of international and national reputes journals. Another contribution of Sir is he has contributed about 16 blogs in different self-learning materials. He has also worked on 6 national and international projects. Unfortunately, I was one of his co-colleague, I will say, in a very ambitious project of United Nations Population Fund, if I'm not wrong, sir. He was the assistant, I will say the coordinator of this project. And as far as administrative work of Sir is concerned, he was assistant proctor of Jamia Millia Islamia twice, and he was principal of Jamia Senior Secondary School. Sir has also discharged his duty in different capacities, like warden of different hostels of Jamia Millia Islamia. With these words, I'm not going to in detail. He is also member of the core committee, university vision documents. He was the member of prospectus committee. He was assistant proctor, I told you twice. And he was the PhD program coordinator, MA program coordinator, PhD program coordinator, in charge sports evaluation, coordinator, BA teaching practice, faculty development program and research methodology courses, what he has attended. And the last but not the least, Sir has been awarded and recognized by the Proud Indian Eminent Professor Award 2022. With these words, Sir, I would invite you to speak on the topic inclusive education. Sir, one thing I would like to tell you here that these participants are very active, and I will say the very participating in your discussion. So, with these words, now the mic over to you, sir. Okay, thank you so much, Aftab sir. Thank you so much for Thank you, sir. giving the opportunity to have an interaction with all the participants. In fact, this is this kind of activity, this kind of programs enriches all of us because we have the opportunity to learn from one another. And if it is a group where participants have a discussion, have question answer session, and share their experiences, it is always encouraging for the speaker as well, and for all those who are attending this program. In fact, such a induction program or such kind of faculty development program should always be
interactive in nature. Only then the fruits of its benefits can be enjoyed by all of us. So I hope this session will be beneficial for all of us, and we all will learn from one another through discussion and deliberation. As announced by Dr. Aftab Sahab, and you must be aware that this session is devoted to inclusive education. And India is a country where we always talk about inclusion, and we always face challenges to have an inclusive society. दोनों तरह की बात है, इंक्लूजन की बात हम हमेशा करते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप करने की बात हमेशा करते हैं, इंक्लूजन के लिए हम हमेशा काम करते हैं। हमारी सरकारें, हमारी गवर्नमेंट इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमेशा काम करना चाहती है। Despite all these efforts, we have been facing challenges in the field of inclusive education or inclusive growth. So the country has been facing, so many challenges at the front of inclusive education in general and inclusive growth in particular. So this particular session is devoted to inclusive education, inclusive growth, inclusive economy, and you must be aware that National Education Policy 2020 has a full focus on inclusive education. Full focus, and the focus can be assessed just by talking about that the full chapter is devoted to inclusive education in National Education Policy 2020. Chapter 6 totally devoted to inclusive education, education of the socio-economically disadvantaged groups, that part of the society, that part of the community, that part of the citizen who has been socio-economically disadvantaged due to so many factors, maybe the economic factor, maybe the social factor, maybe any other factors. Because of any factor, if somebody has, is not up to the mark, or they may not have the opportunity to excel in their, favorite field, in their field of choice, they may not get the opportunity to excel. And because of so many factors, they lag behind in their activities, in their achievement, in their success, in their, education, in their economy, in their, social status, etc., etc. So reasons are varied, factors are varied, but the most important thing is that no country can develop without including each one of the country. The more we become inclusive in nature, the more the country will develop and prosper. The less we are inclusive in nature, the less we are inclusive, the less we will develop. This is the general formula. आप समाज के तमाम तबके के लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात यह है, देश का मतलब ही है कि सबका आगे बढ़ना, और इसलिए NEP 2020 पूरा फोकस करती है हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ पूरी बात। आज हम उसी पे बात करेंगे, और यही हमारा टॉपिक है डिस्कशन का इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, है ना। So now I'm going to share with you all my presentation, and with the help of that we will discuss in detail. Visible है आपको ये slide? Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, thank you. Visible. So now the question is, why we talk of inclusion and equity? ये दो बातें हम करते हैं, बहुत कॉमन टर्म है आजकल, इंक्लूजन की बात, इक्विटी की बात, दोनों की बात हम करते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, जहाँ डाइवर्सिटी होगी डिस्पैरिटीज होती हैं। जो कहिए कि डिस्पैरिटीज है बिकॉज डाइवर्सिटी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डाइवर्सिटी को हम एंजॉय नहीं करते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करते। डाइवर्सिटी होना बुरी बात नहीं है, डाइवर्सिटी होना कोई परेशानी की बात नहीं है। इट इज नॉट ए हर्डल, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज नॉट एन इश्यू। डाइवर्सिटी मे बी a good opportunity, may be an asset, and it must be enjoyed. It depends upon the citizen of the country, it depends upon the policy makers, it depends upon the educational administrators and the executives, the parliament, how they
manage the diversity, how they seize the opportunities which are hidden in diversity, because diversity can be used in a very better way for the advancements and growth of the country. लेकिन जाहिर सी बात है, there have been problem in the country, and that's why, because of diversity and the disparities, the country has been facing so many challenges since independence. इंडिपेंडेंस के पहले की बात ना करें, बात की ही बात करते हैं, आज़ादी से लेकर आज तक इश्यूज रहा है, प्रॉब्लम रही है, और इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इस डाइवर्सिटी को किस तरह से एंजॉय किया जाए, किस तरह से इसको बेहतर बनाया जाए। और वो लोग जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जहां लार्ज डिस्पैरिटीज अभी भी मौजूद हैं, डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स on the part of the government, on the part of the policy, on the part of the executives to fill this gap, to reduce the gap, कोशिशें होती रही हैं। इसके बावजूद अभी भी there is a large gap, disparities exist, and that is the reason that NEP 2020 has a full chapter on socio-economically disadvantaged groups, SEDGs, chapter 6 of NEP 2020 talks about that. अब इसको, now let us see what sort of diversity we generally observe in our society, in our school, in our university system, in our culture. We all know that India is a country where diversity is maximum at the global level. दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी डाइवर्स हो जितनी हिंदुस्तान। Diversity in terms of religion, diversity in terms of geographical terrain, diversity in terms of belief system, diversity in terms of food habit, diversity in terms of your languages, regions, religions, etc., etc. Lots of diversity is there. लेकिन उसके बावजूद इन तमाम डाइवर्सिटी को एक बालाए ताक रख करके हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके एकता के साथ हिंदुस्तान को आजाद करा लिया। वो इसलिए हम लोग जो बात करते हैं कि डिस्पाइट having so many diversity in India as a country, where you will observe unity in diversity, and एकता में एकता की बात करते हैं, वो चीज। तो यहाँ आप देखिए, you can see here in this particular slide, gross enrollment ratio in higher education. इसको देख के भी डाइवर्सिटी का आपको अंदाजा होगा। 2014-15 में we had only 23.7% gross enrollment ratio in higher education, यानी कि 100 ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकते थे, जा सकते थे, 12th करने के बाद कॉलेज में दाखिला ले सकते थे, उनमें से सिर्फ 23 लोगों ने दाखिला लिया। 23.7, मान लीजिए कि 24 लोगों ने दाखिला, सिर्फ 24 लोगों ने दाखिला लिया। बाकी इसका मतलब ये है कि 76 लोग जो हायर एजुकेशन में जा सकते थे, हायर एजुकेशन ले सकते थे, वो किसी वजह से हायर एजुकेशन में उनकी एंट्री नहीं हो पाई, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रही हो, चाहे उनके हालात अच्छे नहीं रहे हों, चाहे उनको एडमिशन किसी कॉलेज ने नहीं दिया हो, चाहे उनको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं हो, देयर मे बी वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन मुल्क के सामने तो एक चैलेंज है कि हमारे 76 लोग कहाँ चले, 74 लोग कहाँ चले गए, हायर एजुकेशन में क्यों नहीं है। 2017-18 में 24.6% का GER, यानी कि तकरीबन 75 लोग जो हायर एजुकेशन में आ सकते थे और ह्यूमन रिसोर्स हमारा डेवलप हो सकता था हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद, वो हम नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? देश भुगतेगा। आप में से किसी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लीजिए आप लोग, जिनका म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। आई रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू प्लीज रिव्यू, या तो म्यूट कर लीजिए खुद ब खुद या उन्हें कर दिया जाए। थैंक यू। 2020 के इन 2021 इट वाज 27.3%। तो आप ये देखिए 2014-15 से लेके और 20-21-22 के दरमियान अगर इन 6-7 सालों में देखिए तो 23.7 से लेकर 28.4% के बीच में वेरी करेक्ट। एज ए होल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन
we have very, low percentage. And this shows the status of our higher education, the status of the society as far as the higher education is concerned. जब तक हम अपने सिटीजन को, अपने नागरिक को, अपने शहरी को एजुकेट नहीं करेंगे, हायर एजुकेशन नहीं देंगे, टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक हमारे देश की इकोनॉमी कैसे अच्छी, हमारा देश कैसे ग्रो करेगा, विकसित भारत बनाने का जो हमारा सपना है वो कैसे पूरा होगा जब लोग एजुकेट ही नहीं होंगे, हायर एजुकेशन ही नहीं देंगे, कैसे होगा? That's the reason and this NEP 2020 has set a target of improving our gross enrollment ratio in higher education. By 2030, Government of India assumed and set a target that we should reach at 50% in our, gross enrollment ratio in higher education. यानी कि कम से कम 100 में से 50 लोग 12th क्लास पास करने के बाद 100 में से कम 50 लोग तो हायर एजुकेशन में जाएं और हायर एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, पूरी करें। पहले तो एंट्री लेंगे तभी तो पूरी करेंगे, एडमिशन तो नहीं, पहले एनरोलमेंट ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम लोग बहुत पीछे हैं एज फार एज हायर एजुकेशन कंसर्न। जब तक हमारी हायर एजुकेशन ठीक नहीं होगी, हम स्ट्रॉन्ग ह्यूमन पावर कैसे कर सकते हैं एक्सपेक्ट। दिस इज वन थिंग। देन यू कैन सी द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एनरोलमेंट 2018-19 से लेकर 2021-22 तक का ये ग्राफ you can see here ग्राफ, जो बार ग्राफ है, 2018-19, 19-20, 20-21 and 21-22 तक का डाटा फॉर ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। प्री प्राइमरी सबसे नीचे बेस में जो देख रहे हैं आप 1.2, 1.4 करोड़, 1.06 करोड़, 0.9, ये दिस इज अबाउट प्री प्राइमरी एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन जिसको NEP 2020 कहता है, जो नया टर्म है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। NEP 2020 ने पहली बार देश की हिस्ट्री में अगर कहा जाए तो NEP 2020 की साइलेंट फीचर है कि पहली बार NEP 2020 ने और एजुकेशन पॉलिसी ने अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात की और उसको एक अलग चैप्टर की तरह से चैप्टर की तरह उसको डेवलप किया, एक अलग चैप्टर उस पर फोकस किया। और बियॉन्ड द पॉलिसी पूरा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NEP 2020 का कि हम अर्ली चाइल्ड केयर स्टेज से ही हम बच्चों के और अपने यंग सिटीजन के एजुकेशन के बारे में सोचना शुरू करें, और इसलिए अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन को फोकस करने की जरूरत पर पूरा बल देता है इस पॉलिसी। बहरहाल, हियर आई वांट टू जस्ट शो यू द स्टेटस ऑफ स्कूल एनरोलमेंट इन आवर कंट्री ड्यूरिंग दीज ईयर्स 2018 to 2022. You can see here in 2018-19, 1.2 crore children admitted in early child care, primary, pre-primary level. Then 12.0 at primary level. Then 6.4 crore in, upper primary level. 3.8 crore at secondary level, means 9th, 10th, and 2.6 crore only at higher secondary, class 11th, 12th. So this bar graph shows the status of the school enrollment from pre-primary to senior secondary stage. Nursery stage से लेकर कर सकते हैं आप 11वीं 12वीं, and what you can observe how the number is decreasing as we go from bottom to top in all these years. आप देखिए नंबर कैसे घट रहा है। घटने का मुराद ये है कि ये 1.2 तो चूंकि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का फैशन हमारे देश में बहुत ज्यादा है नहीं, अब थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है ना। तो प्राइमरी से देखिए आप सेकेंडरी तक तो आपको नजर आएगा 12 करोड़ बच्चे थे हमारे प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी में 6वीं 7वीं 8वीं में जाते आते वो 6.4 करोड़ हो गए। 9th 10th में उसमें से 3.8 करोड़ पहुंचे, और 11th 12th में उससे भी कम 2.6 करोड़ 2018-19। यू कैन सी दिस इन अनदर पर्सपेक्टिव। 2018-19 में जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे थे, जो कि 12 करोड़ बच्चे हैं, इन 12 करोड़ को 2019-20 में जाना चाहिए अपर प्राइमरी में, जो कि 6.5 है। तकरीबन 50% ड्रॉप आउट हो गया इसका, इतना बड़ा लॉस। So if you observe this graph seriously, keenly, systematically and critically, you can, interpret it and you can find it, the status of school enrollment in our country. लगातार देख रहे हैं आप
अब 18-19 में थी, 19-20 में थी, in 2021 as well as 2021-22. In all these years, starting from primary education to senior secondary level, the number of enrollment is decreasing लगातार. रीजन क्या है? देयर इज वैरायटी ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं. अब तो 21-22 में तो स्कूल की कमी नहीं है, स्कूल की कमी हिंदुस्तान में नहीं है. और राइट टू एजुकेशन का लॉ आ चुका है, फंडामेंटल राइट बन चुका है. आर्टिकल 21A 2009 में पास हुआ, 2010 में इंप्लीमेंट हुआ. नाउ नोबडी, नो स्कूल कैन से दैट देयर इज नो सीट इन आवर स्कूल एंड यू कैन नॉट बी गिवन एडमिशन इन आवर स्कूल. No such statement should Hello, be sir. given by. Excuse me, Yes, sir. जी Sorry to बताइए. interrupt you. Sir, I want to say that your slides are not moving. We are only seeing the first slide. Is it moving now? Can you see moving? No, not moving. No, 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 Okay. no, it's not moving. Let me check. Yes, now it's moving, sir. Now it's moving. Yes, now it's moving. Now we can see different slides. बताइए, is it moving? Is it clear? Yes, Is it yes, clear? sir. Yes, now it's moving. Thank you. Thank you, sir. So this was the slide. Okay. So this is the status. So this is very disappointing for all of us. All of us. Those students who were admitted in primary level should complete their higher education. अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता कि जो बच्चे प्राइमरी, अर्ली चाइल्ड केयर में, प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में दाखिला ले रहे हैं, they all should complete higher education, till higher education. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना. यही बच्चे भी हायर सेकेंडरी जाते जाते इतना कम हो जाते हैं और हायर एजुकेशन में और कम जाते हैं 12th करने के, because of diversity, because of so many economic factors, so many social factors, so many religious factors, so many obstacles they have been facing in the society, in the community, so many social barriers that they have been facing in different part of the country, कहीं पर बच्चों को जो है ज्योग्राफिकल बैरियर है, कहीं पर सोशल बैरियर है, कहीं पर कल्चरल बैरियर है, कहीं किसी और तरह का बैरियर है, जिसकी वजह से 100% इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, 100% ग्रोथ नहीं हो रहा है और जीआर हमारा कम. Here you can see the third slide, which is again a database information. Again from 2018 to 2022, the status of gross enrollment ratio (GER) by gender and level of education. Gender and level of education दोनों की बात करो, प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक, बॉयज एंड गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी यू कैन सी लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है. गर्ल्स एजुकेशन, बॉयज, गर्ल्स के केस भी बॉयज का और टोटल साथ दिया हुआ, गर्ल्स देन बॉयज देन टोटल फॉर ऑल लेवल्स. आप सबसे पहला जो बार है 101.8 और सबसे आखिरी 50.1, तकरीबन 50% कम है फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक. जब हमारे मुल्क की ये कंडीशन होगी स्कूल इनरोलमेंट में, हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जो इतना कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि नेशन विल हैव टू फेस द चैलेंजेस. मुल्क को इसका सामना करना पड़ेगा, मुल्क को इसको भुगतना पड़ेगा. जब हम लोग आज बात कर रहे हैं विकसित भारत बाय 2047, सॉरी, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो सपना देखना चाह रहे हैं. हम विश्व गुरु की बात करते हैं. कैसे बनेंगे विश्व गुरु हम, जब हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये रहेगा, हमारा जो है घटता चला जाएगा, जैसे जैसे बच्चे हायर लेवल जाते हैं एनरोलमेंट कम हो रहा है, कैसे होगा? दैट इज द रीजन that government of India and national education policy has set a target to tackle the issues of inclusion in a very serious manner, and to improve education in different ways and for all levels, starting from enrollment to their employment.
from start to finish at all levels. And then again, you can see here another very important and very astonishing fact: share of enrollment at primary level, and here you can see government and private school both. Government and private school, share of government school decreasing and share of private school increasing. ये असर की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट है, 2021 की रिपोर्ट है ना। ये एक अलग तरह की फाइंडिंग्स आपको दे रही है। आप ये देख रहे हैं 2007-8 से लेकर के 19-20 तक का डाटा, 7-8, 2007-8 to 2019-20, you can see here very clearly government share of share of government school decreasing। ये जो ग्राफ है ऊपर का, ये 2007-8 में जो ब्लू कलर है आपका, this was the share of government school enrollment, and the red color was the share of private school, जो बच्चे जाते थे पढ़ने। There was a huge gap, there was a marked difference in those days. Government school continuously decreasing in the number of enrollment, लगातार कम होता चला, प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ते चले जाते लगातार। This is also a very pertinent question for all of us. For a country like India, जहाँ गरीबी है, गुर्बती है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी होता है, और देश तमाम लोगों को एजुकेट करना चाहता है, हम सबको एजुकेट करना चाहते हैं, हम सबको पढ़ाना चाहते हैं, सबको बढ़ाना चाहते हैं। ये ट्रेंड कुछ और शो करता है। ये ट्रेंड कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि मेरा जो पर्सनल इसमें ओपिनियन है, जब दो तरह का स्कूल रहेगा तो गैप तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए बात याद आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी 1966 का कोठारी कमीशन की बात है, वो कहते थे कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, एक तरह का स्कूल हो पूरे देश में, कॉमन स्कूल सिस्टम, जिसको नेबरहुड स्कूल सिस्टम भी कहते हैं। सजेस्ट किया था पॉलिसी। तो देश के किसी बड़े प्राइम मिनिस्टर का बच्चा भी अपने घर के पास वाले स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर जो कुक होगा, जो चपरासी होगा, जो प्यून होगा, जो उसका सर्वेंट होगा, वो उसकी फैमिली वहां रहती है, उसका बच्चा भी अगर उसी उम्र का होगा और उसको भी प्राइमरी स्कूल में जाना होगा, है ना, तो सबसे पास वाले स्कूल में वो भी जाएगा। एक ही स्कूल में पढ़ेंगे दोनों बच्चे, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा भी पढ़ रहा होगा उसी स्कूल में, और उसके घर में काम करने वाले जो प्यून होंगे, उसके ऑफिस में काम करने वाले प्यून, उसके जो मेड सर्वेंट होंगे, उसके जो कुक होगा, उसका बच्चा भी पढ़ेगा उसी स्कूल। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बच्चा भी पढ़ेगा उसी स्कूल में, जिस स्कूल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस का जो पर्सनल असिस्टेंट है उसका बच्चा ही पढ़ेगा, क्योंकि सबका रिहाइश एक ही है, रहते हैं सब एक साथ काम करते हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम, लेकिन वो हो नहीं पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर वैसा होता तो ये गैप्स नहीं होते, सोसाइटी डिवाइड नहीं होती, हैव्स एंड हैव नॉट्स का। जिस गैप को हम बंद करना चाहते हैं, जिस गैप को हम फिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जिस गैप को कम करना चाहती है, और पूरे समाज के अंदर, पूरे माशरे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे नेशन के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए की बात करते हैं, हम इंक्लूजन की बात करते हैं, वो ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाता, ऑटोमेटिक इंक्लूजन होता। उर्दू में एक शेर है ना कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व यास, न कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बात वही है, एक ही स्कूल में दोनों पढ़ रहे, ऑटोमेटिक पढ़ाई अच्छी होगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, किसी तरह की कोई इशू का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इफ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स, देयर विल बी क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी। क्यों जाएंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालने के लिए, पैसा क्यों खर्च करेंगे जब अच्छा नहीं होगा? तो उनको अच्छा करना, सरकारी स्कूल से अच्छा करना उनकी मजबूरी है, इसलिए वो अच्छा करें। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में भी केंद्रीय विद्यालय, तो देख लीजिए आप, यू कैन सी द केंद्रीय विद्यालय आर डूइंग मच बेटर देन एनी बेस्ट प्राइवेट स्कूल इन द कंट्री, एनी बेस्ट प्राइवेट स्कूल इन द कंट्री अच्छा करेगा, despite the fact that Kendriya Vidyalaya is also government schools. So we need to improve the system at large. Anyway, so this is again a question, a question for thought, a food for thought. Now, as we have seen the status of our enrollment, status of our gross enrollment ratio, declining trend of enrollment, overall enrollment in school declines steadily from class 1 to class 12 that we have seen.
सिग्निफिकेंटली हायर एमंग ACDGs। ये जो डिक्लाइन है और ये जो स्कूल से ड्रॉप आउट होना है, बच्चे जो हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 12th क्लास के बाद बच्चे हायर कॉलेज में दाखिला नहीं रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, कौन लोग हैं ये लोग? अगर आप इस पर रिसर्च करें, इसकी स्टडी करें, तो आप ये पाएंगे कि ये कौन लोग हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो ACDG से बिलोंग करते हैं, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनको अपने घर को चलाना होता है, जिनको अपने परिवार को चलाना, जिसको अपने पेरेंट्स की मदद करनी होती है, जो बचपन से लेकर के और 12वीं क्लास करते करते अपने पेरेंट्स की परेशानी को देखते करते थक चुका होता है। अब कहता है चलो 12वीं तो कर लिया, अब कोई नौकरी कर और पेरेंट्स की मदद कर, अब कोई 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 स्किल सीख लेते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, चाहे चाहे किसी भी तरह का पैथोलॉजी का कोर्स हो, किसी स्किल बेस्ड कोर्स कर करके जल्दी से जॉब में जाते हैं, जॉब में जाने की जल्दी है। हायर एजुकेशन की तरफ जो जो जिसका मेन फंक्शन है नॉलेज क्रिएशन, रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन, वहाँ कहाँ जाते हैं? वहाँ जाने के लिए जरूरी है कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम, और ये जो ग्रुप है हमारा सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, उनको इम्प्रूव करना, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा। फिर सवाल अपने आप पैदा होता है, बेहतर होंगे कैसे? एजुकेशन इज द ओनली वे टू इम्प्रूव देयर लाइफ। Education is the only way to bring transformation and development in the country. Education is the only way to bring change in the life of individuals. Education is the only way to transform the society, the community, the villages, the culture and the civilization and the social fabric, etc. etc. It's the only way. And that is the reason that we need to focus on education. We need to focus on education. जितना ज्यादा एजुकेशन पर फोकस करेंगे, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और खास तौर पे उन लोगों की एजुकेशन पर फोकस करना जो फिर सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाशिए पे जो लोग जा चुके हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, जो बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकते, जो बच्चों को दूसरे मुल्क नहीं भेज सकते पढ़ाने के लिए, उनके लिए जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट NEP 2020 के थ्रू ये बात भी करती है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन लाएंगे, और उसके लिए लाने की बात है, नए नए यूनिवर्सिटी, नए नए कॉलेज खोलने की बात है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज खोलने की बात है, होलिस्टिक एजुकेशन को देने की बात करती है। Anyway, these are the overall picture of the holistic, the status of inclusive education. ये जो डिक्लाइन का ट्रेंड है ना, अगर आप उसको और स्टडी करें तो ये जो ट्रेंड है डिक्लाइन का, या धीरे धीरे लड़कियों में और ज्यादा बढ़ा हुआ है। गर्ल्स एजुकेशन का, विमेन एजुकेशन ग्राफ देखिएगा तो और ज्यादा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, है ना। वो शादी हो गई, पढ़ने के दौरान स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, तो फैमिली वे में है, वो नहीं कर पा रही है, कंटिन्यू नहीं कर पा रही एजुकेशन को। 2 साल 3 साल जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट, आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग BEd प्रोग्राम और PhD, है ना, आफ्टर दे हैव बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिंगिंग अप ऑफ देयर चिल्ड्रन। बच्चे 10वीं क्लास कर लिए, बच्चे BSc कर लिए, अब फ्री हो गए हैं, अब PhD करने के लिए। आई हैव सीन मेनी ऑफ द विमेन, मेनी ऑफ द गर्ल्स आफ्टर मैरिज, लेकिन उनका रेट ज्यादा है ड्रॉप आउट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो आजकल जो एक नई पॉलिसी जो आई है, आपने सुना होगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, वो इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए, मेरे ख्याल में इस पर भी लेक्चर जरूर हुआ होगा, हम अब सब पता भी चल गया है। तो एनीवे, सो दिस जो इवन ग्रेटर डिक्लाइंस फॉर फीमेल स्टूडेंट्स विद इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक हर लेवल पे फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा डिक्लाइन है, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, उनके ड्रॉप आउट का, उनके नॉन एनरोलमेंट का, उनके discontinuing education because of so many factors. The decline in enrollment in higher education is even steeper. Decline higher education और ज्यादा। इसलिए गवर्नमेंट जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लेके आई, इसलिए कि आपको एक तरह से मोटिवेट करना चाहती है गवर्नमेंट
एक मौका भी देना चाहती है, इंकरेजमेंट भी देना चाहती है, एक तरह से उनको ये कह रही है कि नहीं, अगर किसी वजह से आप ड्रॉप आउट हो रहे हो और जा रहे हो छोड़ करके 1 साल के बाद, भाई सर्टिफिकेट देते जाओ अपना। 2 साल के बाद छोड़ के जा रहे हो तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले जाओ कि आपने 2 साल पढ़ा है, खाली हाथ मत जाओ। और ये भी सोचते जाओ कि आप 2 साल पूरा कर लिया है, और जब आपको हम दे रहे हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट, या 1 साल के बाद आप छोड़ रहे हो किसी वजह से, हमें सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप तो हम ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि आपको जब आप दिल चाहे, जब आपकी समस्या दूर हो जाए, जब आप सेटल हो जाओ, है ना, जिस वजह से आप छोड़ करके जा रहे हो किसी वजह से, वो वजह आपकी खत्म हो जाए, उस समस्या का समाधान हो जाए, तो सोचना एक बार, आप फिर वापस आओ और अपने हायर एजुकेशन को पूरा करो। ये जो मल्टीपल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दिस इज ब्यूटीफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कौन आएगा छोड़ करके, है ना, जाने के बाद जो पढ़ना चाहता है वो हमेशा वो आएगा, है ना। कई बार होता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये मौका आप दे रहे हैं छोड़ के जाने का, दोबारा एंट्री का, इससे जो है ड्रॉप आउट बढ़ेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं कि मेरा मानना यह है कि कोई भी आदमी, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट इसलिए नहीं होता है ना, कि जगह कोई खास रीजन नहीं है। ड्रॉप आउट इसलिए होता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यू है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है, चाहे वो उसकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे उसके सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उसके इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कोई ना कोई समस्या है, वरना वरना ड्रॉप आउट होते नहीं। और अगर या तो शौक नहीं पढ़ने का, शौक नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, इंकरेजमेंट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अगर मोटिवेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, इंकरेजमेंट नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर की जिम्मेदारी भी है, हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है। हमने अपने एकेडमिक सिस्टम को, हमने एजुकेशन सिस्टम को, अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को, एकेडमिक एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया नहीं। हमको वैसा बनाने की जरूरत है कि जिनके पास दिलचस्पी कम है, एडमिशन ले लिया तो दिलचस्पी बढ़ जाए। We are supposed to create such an environment in the campus that they sustain their interest in higher education. और किसी वजह से ड्रॉप आउट होकर जाना भी पड़े किसी वजह से, तो शब्द ड्रॉप आउट का इस्तेमाल ही ना करो। किसी मजबूरी की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे हालात साजगार होंगे वो वापस आके अपनी जिम्मेदारी, ये चीजें हैं। एक चीज अगेन यू कैन सी हियर अनदर वेरी 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 एस्टोनिशिंग फैक्ट। यू कैन सी, आपको फिर अचंभा करेगा ये फैक्ट। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट है 2021 की। एनसीईआरटी जो है हमारी, पूरे हिंदुस्तान का के स्कूल के बच्चों का नेशनल अचीवमेंट सर्वे करती है, पूरे हिंदुस्तान का ही सेंसस बेस्ड अप्रोच। बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को लेते हैं, हर स्टेट से लेते हैं, हर स्टेट से, है ना। और क्लास 3 के बच्चों का, क्लास 5 के बच्चों का, क्लास 8 के बच्चों का, क्लास 10 के बच्चों का, ये पूरा। और एन एवरेज निकाल के देखते हैं कि हमारा अचीवमेंट कैसा है बच्चों का एज ए होल एट द नेशनल लेवल। दिस इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट को यू कैन सी है। ये भी पता होना चाहिए कि क्लास 3 के अंदर जो है, जब बच्चों का जो ब्लू कलर में देख रहे हो, ये है लैंग्वेज, मैथ, ईवीएस, साइंस, सोशल स्टडीज और इंग्लिश। ये इतने सारे सब्जेक्ट का अचीवमेंट सर्वे होता है। इतने सारे सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ और लैंग्वेज, ये सारे की सारी चीजें। लेकिन छठी क्लास में, 8वीं में, 10वीं में, वहां पर है साइंस, सोशल स्टडीज और इंग्लिश। बाकी छठी से नीचे यानी कि 5वीं क्लास में देखिए तो ईवीएस होता है। 5वीं क्लास में ईवीएस, साइंस नहीं। उसके पहले लैंग्वेज का, मैथ का और ईवीएस का होता है। तो अब यू कैन सी हियर इन दिस ग्राफ, एंड एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न, तो आप ये देखिए कि क्लास 3 का बच्चा 323 मार्क्स ला रहा है आउट ऑफ 500। तीसरी क्लास का बच्चा, students of class 3, the average score of class 3 students in language is 323 out of 500. हाँ, क्लास 5 में आप देखिए ये कितना हो जाता है। लैंग्वेज में क्लास 5 में जब बच्चा पहुंचता है तो लैंग्वेज में उसका कितना हो गया, एवरेज 309, है ना। और उसके बाद क्लास 8 में एवरेज स्कोर हो जाता है 302 आउट ऑफ 500। और जब बच्चा क्लास 10th में पहुंचता है तो लैंग्वेज में उसका एवरेज स्कोर हो रहा है 260 आउट ऑफ 500। हाउ द अचीवमेंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 323 to 260 आउट ऑफ 500। दिस इज
Astonishing. Similarly, in mathematics, you can see the average score in mathematics out of 500 is 306. Hello, sir. Yes. Again, sorry to interrupt you, sir. I think again there is problem with the slide. I think you are discussing some other slide and we are seeing some other slide on the screen. We are seeing this one, school enrollment in Karor. This one is on the screen. Slide change नहीं हो पा रहा कभी कभी रुक जा रहा है. Let me check again. This slide share कर ले सर. स्लाइड अब स्लाइड नजर आ रही है क्या? अभी आ रही नजर? अभी नजर नहीं आ रही सर. नहीं, शेयर कर, दोबारा शेयर कर. Is it visible? Not अभी आ रही है. आ रही है. नैस रिपोर्ट नजर आ रही है आपको? आ रही है. Yes, visible, sir. विजिबल नैस रिपोर्ट. तो मैं इसको अब स्लाइड शो पे नहीं जाता हूँ, मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको. प्रॉब्लम है स्लाइड शो, ठीक है. सो इसको लार्ज नहीं करना. सो दिस इज, यू नो, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, है ना. ये दिखा रहा था. यू कैन सी हियर इन लैंग्वेज की क्लास में आई बात कर रहा था. आई वाज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल अचीवमेंट सर्वे स्कोर of class 3 students in languages, 323, which has declined to 260 when the students reaches class 10th. So language में बच्चों की परफॉर्मेंस जो कि 323 नंबर ला रहे थे तीसरी क्लास में, 260 पे पहुंच गया जब वो 10वीं तक पहुंचते. So their performance, their achievement in languages is declining from primary class 2 to class 3 to class 10. Similarly in mathematics, you can see mathematics class 3. The NAS report says that the average performance is 306 out of 500. And when these students reaches class 10th, the average comes down to 220 only. So in all the graph, you can see the trend. For EVS, in class 3, the average score is 307 out of 500. And in class 5, it is 283, again declining. In science, in class 8, 250 is the average score, that 50%, and it is decreasing to 206 in class 10. For SST, again, declining from 250 as average score to 231. और ये क्लास 10th का देख रहे हैं, इंग्लिश का स्कोर है. ये इंग्लिश जैसे क्लास 10th का होता है 277 है, तो उसको कंपेयर करें तो 323 था क्लास 3 में, तब भी कम होता है 277. So in all the subjects, the National Achievement Survey says that the performance, the achievement of are declining and decreasing as they go from lower level to higher. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है. मींस इंक्लूसिव लर्निंग बच्चे की नहीं हो रही. इसका है ना, एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, एक इंक्लूसिव लर्निंग है, दोनों चीजें अलग. वी कैन क्लेम टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन, बट मे बी स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग इंक्लूसिव लर्निंग एट ऑल. लर्निंग को भी इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, एजुकेशन को भी इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाना. And we need to be alert at each level for each aspect of, you know, development. वो सारी के सारी चीज़. And because of all these factors which we have already discussed, and all these graphs we have already shown to you and discussed about all these things, the UNESCO Global Education Development Agenda (SDG 4) of the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by India in 2015, 2015 में एक्सेप्ट किया था. तो वहां से निकल के आता है कि वी हैव टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030. ये एनएपी 2020 का टारगेट है. 2030 तक हमें तमाम बच्चों को, तमाम सिटीजन को के लिए इंश्योर करना है कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन दे पाए. एक तो इंक्लूसिव दे पाए और इक्विटेबल क्वालिटी दे पाए, क्वालिटी एजुकेशन, एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. पूरी जिंदगी जब चाहे एजुकेशन ले लीजिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी 2030 में. So that is the reason that chapter 6 has been added to National Education Policy 2020 as a full chapter on inclusive education. Full chapter, जो कि part 1 है, chapter 6. Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं.
ये अलग बात है कि हम लोग अपने माशरे के अंदर, समाज के अंदर देखते हैं कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी पैसा बहुत कमाते, पैसा कमा लेते। पैसा कमाना एक अलग चीज है, डेवलपमेंट एक अलग चीज है। जब हम बात करते हैं ऑलराउंड ग्रोथ की बात करते हैं, ऑलराउंड इकोनॉमी की बात करते हैं, होलिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम एक ऐसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट डेवलप कर रहा हो और देश की इकोनॉमी का और देश की पूरा पूरा सोशल फैब्रिक का हर एक पहलू डेवलप कर रहा हो, और उसका रास्ता एजुकेशन। Inclusive and equitable education, some of them critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive, and contribute to the nation. That's बात है। जितना ज्यादा डेवलपमेंट देश का होगा उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट हमारा होगा। वाइस वर्सा, जितना देश का नागरिक डेवलप करेगा देश उतना डेवलप करेगा। इसलिए national development depends upon development of each and every citizen of the country, each and every citizen of the country. हर इंडिविजुअल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेशनल ग्रोथ में, नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। और इसलिए अगर मेजर चंक हमारा अनएजुकेटेड रहेगा, अनस्किल्ड रहेगा, जाहिर सी बात है नेशनल ग्रोथ को हैम्पर करेगा, ऑब्स्टेकल पैदा करेगा, और हम विश्व गुरु की तरफ जा भी नहीं सकते अगर हम एजुकेट नहीं कर पाए। So education is the only way, and inclusive education is the only way basically. The education system must aim to benefit India's children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background. है ना? किसी गरीब घर में पैदा हो गया, गांव में पैदा हो गया, किसी ऐसे रिमोट एरिया में पैदा हो गया, किसी रिमोट बैकग्राउंड फैमिली में पैदा हो गया, रिमोट एरिया में भी और बैकग्राउंड सोसाइटी में भी पैदा हो गया। For any such situation should not come in the way of education, should not obstacle, should not create hurdle for education of the child. This is the main focus of inclusive education. कोई रुकावट उसके सामने नहीं आनी चाहिए। रुकावट को दूर करना समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट सारे के लिए स्कीम देती है। स्कीम है गवर्नमेंट के पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलो मकतब चलें, चलो विद्यालय चलें। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट रनिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और पूरे देश में जो चल रहा है ना, मिड डे मील स्कीम और समग्र शिक्षा अभियान 2000 से सन 2000 से चल रहा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कीम फॉर एजुकेशन, और बहुत बड़ा चेंज आया है पूरे देश के अंदर उसकी वजह से जो एजुकेशन के स्कीम्स चल रहे हैं। So bridging the social category gaps in access, participation, and learning outcomes in school education is another very important, aim of education. तीन चीजें यहाँ पर आई: access, participation, and learning outcomes. These three are very, very important terms. Social gap, social category gaps तो bridge कैसे करेंगे? इंक्लूजन सिर्फ इस बात से नहीं हो जाएगा कि बच्चे का एडमिशन होगा। एडमिशन एक बैरियर जरूर है, एक्सेस हो बुनियादी चीज है। ईच एंड एवरी चाइल्ड मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। कोई बच्चा ये ना कहे, कोई पेरेंट ये ना कहे कि स्कूल बहुत दूर है, बच्चा कैसे जाएगा, कैसे ले जाएंगे उसको स्कूल। या कोई हेडमास्टर स्कूल का कहे कि यार अब जगह खत्म हो गई है, सीट नहीं है, क्लास फुल हो गई है, अब आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। नो टीचर, नो हेडमास्टर कैन से लाइक दिस। And in the present scenario in the entire country, I must think it can be claimed that there is no any part of the country where we don't have access to primary education or secondary education or school education, I can say. In 2024, we have full access to, school education at every place. Through right to education, we have a provision that each and every child should have प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर पेरिफेरी। 1 किलोमीटर से ज्यादा किसी बच्चे को नहीं चलना पड़ेगा, किसी पेरेंट को नहीं जाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल जरूर हो। 3 किलोमीटर के दायरे में, विद इन 3 किलोमीटर पेरिफेरी, यू विल सर्टेनली फाइंड ए मिडिल स्कूल, एंड विद इन 5 किलोमीटर पेरिफेरी यू विल सर्टेनली फाइंड ए हाई स्कूल, a +2 school, certainly fine. Gone are the days when people used to go
20 kilometer or 30 kilometer to attend school. लोगों को जाना पड़ता था. You may discuss with your parents. You must be aware about that. आपने सुना भी होगा. इसी देश की कहानी, इसी मुल्क में ऐसा होता है. आजादी के पहले और आजादी के बहुत दिनों बाद तक. जब तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नहीं आया था, बड़ा मसला था. 1986 की पॉलिसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम आया. 86, 87, 87, 88, 88, 99, 89, जिसमें एक आ गया कि नहीं भाई, हर प्राइमरी स्कूल को बदल दो. हर प्राइमरी स्कूल के अंदर दो कमरे क्लासरूम होने चाहिए, हेडमास्टर के बैठने के लिए ऑफिस होना चाहिए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, साइंस किट होना चाहिए, मैथमेटिक्स किट होना चाहिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए खेलने कूदने का सामान होना चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए. तस्वीर बदलनी शुरू हो गई. और जब ये शुरू हुआ समग्र शिक्षा अभियान, तस्वीर और बदल गई. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया, तस्वीर और बदल गई. मिड डे मील स्कीम आया, तस्वीर और बदल गई. सो नाउ वी हैव totally changed scenario of school education. वो सारी तो एक्सेस का जो मसला था एक जमाने में, आज की डेट में नहीं है, बिल्कुल नहीं. आज की डेट में मसला पार्टिसिपेशन का. बच्चा क्लास में तो बैठा हुआ है, लेकिन क्या वो लर्निंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है? वो इज ही और शी पार्टिसिपेटिंग इन लर्निंग और नॉट? उसकी लर्निंग इंश्योर हो रही है नहीं हो रही? दिस इज ए चैलेंज. और आपको ये पता होगा, हम सब हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं. हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे होते हैं. आपको पता होगा कि सब कुछ जरूर नहीं कि जो बैठे हुए क्लास में वो सीख रहे हैं. Whether all are learning? Have you thought about that? And if you have ever thought about that, what you did for those who are not learning, what extra effort you did for them. Now this is an important challenge. Let each and every child participate in the process of learning. This is very important. Ensuring the participation of each and every in the class, each and every in the school, each and every in the college campus, in the university campus. Everybody must learn. You must not be merely just entered into the class and sitting in the class, admitted in the class. So access, then participation, और तीसरी चीज यहाँ पर है learning outcomes. Learning outcome is the target. What they have learned, what they can do, how they can respond to a certain phenomena to which they were not able to respond before the class. So what change you brought within the learners before the class and after the class, before the session, after the session, before the semester, after the semester, before the course, after the course, before the program, after any program. That is supposed to be seen. That is supposed to be observed. There must be a change in the overall personality of the learner. They must learn something. And whether they have learned or not learned, they must be in a position to reflect through their behavior, through their actions, through their performance. That is the focus of NEP 2020. NEP 2020 कहता है कि competency based education की जरूरत है हमारे पास. We must develop competency among the learners, not just admit them in school and colleges, and not just give them lecture in the colleges and universities. Develop their skills, their competencies, their ability to achieve, to do, to perform, and to make their life success. Wo competency. So, and there are different types of competencies. Different competencies can be developed through different subjects, and many subjects can together develop a particular competence. That is a big concept to discuss and deliberate on. So now, bridging gaps and ensuring learning for all through 5 levels. ये 5 चीजें हैं, है ना? These are the 5 levels. इसके थ्रू इसके थ्रू हम गैप को फिल कर सकते हैं. इसमें से कुछ की बात मैंने की है. एक्सेस सबसे पहला चैलेंज है, सबसे पहला ऑब्स्टेकल है, सबसे पहला लेवल है. We must ensure access to education. And India, I think access to school education is 100% perfect. To my experiences, to my understanding, to my observation,
I can say that we in the country has full access to all levels of education. आज कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर, कोई भी स्कूल में दाखिला लेने वाला ये नहीं कह सकता कि स्कूल अवेलेबल नहीं है। खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि नर्सरी स्कूल में दाखिले के लिए जो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ और पटना और बड़े बड़े शहरों में जो हंगामा और बर्पा होता है वो मुझे मालूम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। सब चाहेगा DPS RQ में ही दाखिला हो जाए तो कैसे हो, पैसा लोगों के पास है, वो दूसरा क्लास है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एक्सेस, वी हैव 100% एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे देखने की बात है, एक्सेस है कि नहीं 100%, वो आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए। ये क्या हमारे शहर में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सोच लीजिए, क्या तमाम वो बच्चे जो कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं सबको दाखिला मिल जाता है, या जितनी सीट है उन बच्चों को दाखिला मिलता है? आप क्या कभी किसी बच्चे से मिले हैं जो ये कहता हो कि मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं हो पाया और इसलिए हमने BSc में दाखिला नहीं लिया, BA में दाखिला नहीं लिया, BCom में दाखिला नहीं लिया, वी कुड नॉट फाइंड एनी कॉलेज, हमें सीट नहीं मिली, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे हो, चाहे वो मेरिट के बेस पे हो। एनीवे, अगर आपका जवाब मिलता है सही, यस, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ कहते हैं, इसका मतलब एक्सेस का इशू है और हमें नंबर ऑफ कॉलेज को बढ़ाने होंगे। और NEP कहता है कि हमें कॉलेज को बढ़ाना है, ये नई नई यूनिवर्सिटीज खोलने हैं, और वो भी यूनिवर्सिटी नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं खोलने हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज खोलने की बात NEP कहता है। हम खोलेंगे हर शहर में मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, सिर्फ कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं खोलेंगे, सिर्फ कॉलेज ऑफ साइंस नहीं खोलेंगे, सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट्स नहीं खोलेंगे, पुराने तर्ज पे बहुत सारे कॉलेज हुआ करते नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होगा, एक कॉलेज के अंदर सारी चीज की पढ़ाई। और फ्रीडम होगा बच्चे को, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो, हाँ, रोको मत। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ ना और बायोलॉजी ना पढ़ के वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, लेट देम रीड, लेट देम स्टडी, फ्लेक्सिबिलिटी है। जो चॉइस है, जो उसकी पसंद है, जो उसका एप्टीट्यूड है, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका एस्पिरेशंस है, पढ़ने दो उसको, पढ़ने दीजिए। आप जाते हैं किसी कैफेटेरिया में, तो कैफेटेरिया वाले की मर्जी से आप खाने का सामान चुनते हैं या अपनी मर्जी से चुनते हैं? आप किसी शॉप में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, तो आप अपनी मर्जी से जाते हैं, हर एक स्टोर पे जहाँ जाना हुआ, जिस दुकान में जाना हुआ गए और आपने सामान को देखा, उसको एसेस किया और जो पसंद आया आपने उसको परचेज कर लिया। सिमिलरली NEP कहता है टोटल फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन, लेट द स्टूडेंट डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू स्टडी, व्हाटएवर स्ट्रीम दे वांट टू स्टडी, there cannot be and there should not be, compartmentalization at all, there should not be boundary at all, total flexibility is there। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं और आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, उनका हल निकाला जा सकता है। हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस करें, प्रॉपर काउंसलिंग करें कि क्या कम्बिनेशन कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या हो सकता है। यू मे कन्विंस देम, यू मे सजेस्ट देम, यू मे गाइड देम, लेकिन their interest is most important। Anyway, so access is the most important. Access should not be a barrier। We must provide access to all levels of education। ये बुनियादी चीज है। तो हमें लगता है कि स्कूल एजुकेशन में टोटल एक्सेस है, कहीं कोई मसला नहीं है। कई जगह तो देख रहे हैं कि स्कूल को बंद करना पड़ रहा है, दिल्ली में कई सारे MCTP स्कूल को बंद करने पड़े, क्यों? इसलिए कि बच्चे नहीं है, बच्चे एडमिशन के लिए बच्चे, सिर्फ टीचर हैं, बच्चे नहीं। कई बार मैं लखनऊ गया सर्व शिक्षा अभियान के मॉनिटरिंग के सिलसिले में, और इन सिटी एरियाज मैंने देखा, लखनऊ में देखा, टीचर बैठे हुए हैं मिडिल स्कूल में 15, 18, 20, और स्टूडेंट्स कितने हैं? 35, 80। अरे ये क्या? पता चला कि लोगों ने कहा कि भाई जाहिर सी बात है, लखनऊ है, बड़ा शहर है, लोग पढ़वा रहे हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में कहाँ आएंगे? मेट्रोपॉलिटन सिटीज की इशू है ये, टीचर ज्यादा क्यों है भाई? तो टीचर का मसला, बड़ा हैरानकुन बात समझ में आई, पता चला टीचर क्यों ज्यादा यहाँ है। फिर बच्चे अगर 80 हैं तो भाई टीचर इतने ज्यादा क्यों हैं? बोले टीचर सर, टीचर की फैमिली रहती है शहर में, अपॉइंटमेंट इनका गांव में था, ट्रांसफर करा करके शहर में आ गए, फैमिली के साथ रहते हैं, इन बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं।
These has been the lacunas, issues था, उसको टैकल भी किया। NEP 2020 ये भी कहता है इलॉजिकल ट्रांसफर पर रोक लगाने, वो भी सारी की सारी चीज। एनीवे वो मेरा इशू नहीं, वो मेरा टॉपिक। तो एक्सेस को इंश्योर करना स्कूल लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है। दूसरा एनरोलमेंट को इंश्योर करना। हर बच्चा जो जिस क्लास में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, दे मस्ट बी गिवन एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर क्लास। एनरोलमेंट होना चाहिए, कोई बच्चा बगैर एडमिशन के ना रह जाए। इसको भी इंश्योर कर लिया गया है, स्कूल लेवल पे कर लिया गया। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आपने देखा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम है हमारा, 26-27% के आसपास में रहा है। फिर 50% करने की बात होती है 2030 तक टारगेट। कितना कर पाते हैं ये वक्त बताएगा। इंप्रूवमेंट तो लगातार हो रहा है। तो स्कूल में एनरोलमेंट तो तकरीबन 100% है। केरला वगैरह में तो आपको पता है, केरला में तो बहुत जमाने से 100%। लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी स्कूल में एनरोलमेंट जो समग्र शिक्षा अभियान के एफर्ट्स के जरिए और बहुत सारे दूसरे स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एफर्ट्स के जरिए, नहीं बहुत सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू भी एनरोलमेंट तकरीबन 100% हो चुका है। यूनिवर्सिटी में जरूर कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन एक तीसरा बड़ा चैलेंज जो है थर्ड लेवल पे जाकर के, वो रिटेंशन है। ऑल दो द स्टूडेंट्स हु गॉट एडमिशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, दे मस्ट बी रिटेन। उनका रिटेंशन चैलेंज, छोड़ के चले, ड्रॉप आउट ना हो जाए, छोड़ के चले ना जाए। रिटेंशन करना, रिटेन दोज हु हैव एडमिटेड, they must be retained in the school, in the college, in the university to complete their education. ये एक अपने आप में चैलेंज। और चौथी चीज इंपॉर्टेंट, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इशारा भी किया था आपको, पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, एकेडमिक एक्टिविटीज, बेसिकली पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग एक्टिविटीज, discussion with the teacher, question answer with the teacher, participation in different cultural activities, cultural programs, games, sports, seminars, conferences, symposium, workshops, and different academic activities and co-academic activities, you can say curricular activities, which are conducted at different levels of school, at different levels of education, from pre-primary to higher education. तो पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने, हम सबको पता भी है। हर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। टीचर की भी क्या इशू है। हम सब टीचर हैं, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। हम सब टीचर एक बड़ी समस्या है कि हम लोग भी उन्हीं बच्चों को क्लास में पढ़ाने लगते हैं जो पढ़ना चाहता है। यानी कि पढ़ना चाहते से मुराद जो सवाल का जवाब देता है, जो लगता है थोड़ा स्मार्ट है, जो रिस्पॉन्ड करता है, उन्हीं से फिर सवाल जवाब, उन्हीं से बातचीत। लगता है कि हम आगे के 2-3 बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। अब पीछे वाला बच्चा को तो लगता है कि बस उसका काम ही है क्लास में आना, बैठना, जाना। We don't do extra effort to involve the backbenchers in the learning process. We don't do extra effort to let them participate in the discussion. ये एफर्ट नहीं करते हैं। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। सबसे पीछे जो बच्चा जो कभी सवाल का जवाब नहीं देता, कभी ना सवाल पूछता है ना सवाल का जवाब देता है, कभी उनसे को जाके मिलो, कभी उनसे की बात, क्या रमेश है, क्या शफीक, क्या बात है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है तो बताओ, कुछ बात करें उससे नजदीकी बढ़ाएं। ये एनईपी कहता है कि उस पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। They must ensure participation of each and every learner in the learning process. तभी तो होगा। इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स होना चाहिए। इंक्लूजन एट द लेवल ऑफ एक्सेस। ऐसा नहीं हो कि समाज के बड़े जो वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए तो स्कूल मौजूद है और जो छोटे तबके के बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। दिस इज नॉट एक्सेस। एक्सेस मस्ट बी फॉर ऑल, irrespective of the class of the children, on any basis, irrespective of religion, irrespective of culture, irrespective of social group, belief system, region, religion, whatever, वो चीजें। एनरोलमेंट के लेवल पे भी इंक्लूजन, एक ही नजर से सबको देखेंगे। ऑल विल बी इंक्लूडेड, ऑल विल बी गिवन एडमिशन विदाउट एनी
biases, retention, inclusion at the level of retention, and inclusion at the level of participation. Everybody should participate. हाँ, ये नहीं कि हमारा बेटा हमारी क्लास में पढ़ता है, हम पढ़ाते हैं तो बेटा से ज्यादा सवाल करते हैं, तो ज्यादा समझा रहे हैं, तुम ही होशियार बन जाओ, बाकी लोग को छोड़ दो। नो, all are your sons and all are your daughters. This should be the belief of the teacher. तो पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना ये चीज। और आखिरी में है पार्टिसिपेशन क्यों कराए, ताकि वो सीख लर्निंग आउटकम के लिए। आउटकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रिजल्ट मीन्स डजंट जस्ट मीन्स मार्क्स। वो आउटकम नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। 90%, 98% और 80% बहुत आ रहे हैं आजकल सीबीएसई में और आईसीएसई बोर्ड नंबर आते हैं। दैट इज नॉट आउटकम। Outcome means they must respond to the question. They must be able to solve the problem that they face in their daily life. Whatever they learn in the class, they must be able to translate it in their daily life. They must be able to integrate what they learn in the class in the society, in the community. स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बाहर दोनों जगह के लर्निंग को इंटीग्रेट कर पाए, वो लर्निंग। बच्चों को सिखाया गया है जी की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। दे शुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी थ्रू प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि रट लिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इम्तिहान में लिख दिया 2 नंबर में 2 नंबर मिल गया। नो, यू मस्ट बी एबल टू परफॉर्म। वो लर्निंग आउटकम्स, और इसके लिए कहता है एनईपी कॉम्पिटेंसी। बेसिकली कॉम्पिटेंसी जो नजर आनी चाहिए थ्रू परफॉर्मेंस, वो दैट्स लर्निंग, उस पर फोकस है पूरा। ये चीजें, ये जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्सेस, इन्वॉल्वमेंट, रिटेंशन, पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स, इन 5 लेवल पे इंक्लूजन होना चाहिए। 5 लेवल पे इंक्लूजन होना चाहिए, इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स। Only then we can say that the dream of NEP 2020 is being achieved, and it can be achieved only if the teachers of the school system and the university system work with honesty, and they themselves become inclusive in nature. Each one of us must be inclusive in nature, in our approach, in our perception, in our attitude, in our teaching learning pedagogy that we use in the classroom. That is important. So a class will become inclusive only the teacher needs it to be inclusive. टीचर जब तक खुद इंक्लूसिव नहीं होगा, इंक्लूसिव आउटलुक नहीं होगा, इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होगा, इंक्लूसिविटी का परसेप्शन नहीं होगा और इंक्लूसिविटी को समझेगा नहीं, तब तक वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता। So we as a teacher need to be inclusive in our approach at all levels and all the time, not only in the classroom or in the college, university campus, but also in our home, in our society, in our community, in the marketplace, wherever we are. This is very important. This is basically. So now the question is how to eliminate barriers. ये जो barriers हैं, जो बात अभी की गई है ना, चाहे वो barriers access से लेके हो, चाहे poverty की वजह से हो, सोशल मोर्स और कस्टम्स की वजह से बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज की वजह से बैरियर हो सकते हैं, एंड परसेप्शन अबाउट स्कूलिंग। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूलिंग इररिलेवेंट। आजकल एक नई बात शुरू में आ रही है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात आजकल। होम स्कूलिंग के नया कॉन्सेप्ट आज का है, होम स्कूलिंग। आजकल बड़े बड़े लोग, जो बड़ी सोसाइटी के लोग कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम बच्चों की होम स्कूलिंग कराएं। क्या है होम स्कूलिंग? पैसा बहुत है, मैथ का टीचर भी है, 2, 4, 10 जितना चाहिए ले लो, साइंस के टीचर, जिनकी जितनी तनख्वाह टीचर को स्कूल में मिलती है, वो तनख्वाह बच्चों को घर पे दे देते हैं, बुलाते को टीचर को। तो ट्यूशन से आगे बढ़ के हो गया ये होम स्कूलिंग। एग्जाम दिला देंगे, आजकल एग्जामिनिंग बॉडी है, असेसमेंट की बॉडीज बड़ी हुई है, इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। NIOS से 10th करो या CBSE बोर्ड से करो, बात एक ही है, एलिजिबिलिटी आपकी है पूरी, कहीं से भी करो। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। I don't want to send my children to these schools जहां बच्चे आपस में गालियां बोलते हैं, उनकी जबान अच्छी नहीं है, उनका लैंग्वेज अच्छा है,
उनका कल्चर अच्छा नहीं है, उनका बिलीफ अच्छा नहीं है, तो हम अपने बच्चों को इसलिए घर पे पढ़ाते हैं, होम स्कूलिंग। दिस काइंड ऑफ, दिस इज ऑल्सो ए बिग बैरियर। इसलिए कि क्लास में जो बच्चा सीखेगा, है ना, वो घर पे कभी नहीं सीख सकता, कितना भी आप अच्छा टीचर दे देंगे। आफ्टर ऑल, एजुकेशन इज समथिंग which teaches us how to lead a good life with the society, with the community. इन बैरियर्स को खत्म करना, और बैरियर्स को खत्म करने की बहुत सारी पॉलिसीज हैं टू ब्रेक द बैरियर। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में प्रोविजन आप सबको पता है, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान अपने आप में इन बैरियर्स को खत्म करने के लिए। टीचिंग लर्निंग, जो मदर टंग में NEP 2020 कहता है कि मादरी जबान में पढ़ाओ बच्चे को, लोकल लैंग्वेज जो बच्चे की है, भोजपुरी में बच्चा भोजपुरी बोलता है, भोजपुरी समझता है, भोजपुरी में पढ़ाओ। मैथिली में पढ़ता है बच्चा, समझता है, मैथिली में पढ़ाओ। कन्नड़ में बच्चा समझता है तो कन्नड़ में पढ़ाओ। आसामी समझता है तो आसामीज में पढ़ाओ। अंग्रेजी समझता है अंग्रेजी, है ना, तो पढ़ाओ। बच्चे के जो मदर टंग है, बच्चे का जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाओ। कहा जा रहा है, NEP कहता है कि भाई आप प्राइमरी में तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ उसके अपने लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में। हो सके तो 8वीं तक पढ़ाओ उसको उसी लैंग्वेज में, और हो सके तो पूरे 10वीं तक पढ़ाओ उसी। पाबंदी नहीं लगाता, पाबंदी नहीं लगाता NEP कहता है। और ये बात सही है, बच्चे की जबान में अगर कुछ चीज पढ़ाएंगे तो बच्चा ज्यादा समझेगा। उसकी अपनी जबान है, सब कुछ समझता है, उसके लिए बोलना भी आसान, कम्युनिकेट करना भी आसान, है ना। ये जो बच्चे जो आते हैं, आप इफ यू आर फ्रॉम एनी रिमोट स्टेट, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं खुद बिहार का हूँ, और बच्चे दिल्ली में आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, अंग्रेजी कमजोर होती है बेचारे। और जो नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आते हैं, आसाम से, मणिपुर से, उधर से आते हैं बच्चे, नागालैंड वगैरह से हमारे यहाँ आते हैं जामिया में बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए हमारे यहाँ। पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आते हैं। पब्लिक स्कूल का मतलब सरकारी स्कूल, और प्राइवेट स्कूल मतलब पता है। लैंग्वेज में बड़ा फर्क होता है। तो जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सरकारी स्कूल बैकग्राउंड से, उनकी अंग्रेजी बड़ी आमतौर पर कमजोर होती है, तो वो पहले ही बेचारे आधे मर जाते हैं। वो दूसरों को देखते हैं अंग्रेजी बोलता हुआ तो घबरा जाते हैं, मोरल डाउन हो जाता है। सो लैंग्वेज शुड नॉट बी एक्टिंग एज ए बैरियर। टीचर मस्ट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। ये जरूरी है। NEP कहता है नो, लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, है ना। आप अपनी जबान में पढ़िए, अपनी जबान में पढ़ाइए, ये पूरा का पूरा। अवेयरनेस कैंपेन एंड स्कैटर्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ऑल पॉकेट्स, ये भी जरूरी है, एक रास्ता है ना। आजकल कुछ लोग कहते हैं भाई गांव में जाके देखिएगा, क्या पढ़ लिख के क्या करेगा, है, नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो चलो चलते हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, नौकरी मिल जाएगी। 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया, हो गया। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और उस सोसाइटी, उस सोशल क्लास का बच्चा जो एजुकेशन की वजह से IAS ऑफिसर बन गया, IPS बन गया, बैंक में नौकरी मिल गया, यूनिवर्सिटी में जो है टीचिंग में, और स्कूल लेवल पे टीचिंग में चला गया, ये इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, दैट मेक द सोसाइटी इंक्लूसिव। रिक्शा वाले का बच्चा, रिक्शा पुलर का बच्चा जब IAS बनता है, और जब वो बैंक में नौकरी करता है, तो 1000 रिक्शा वाले समझ में बात आती है कि नहीं यार, एजुकेशन तो पूरे पूरा हमारे सिजरा बदल सकता है, हमारी जनरेशन को बदल सकता है। इसलिए आजकल एक नया ट्रेंड हमने देखा है, दिल्ली में ट्रेंड में देखता हूँ मैं, है ना, जब मैं फल खरीदने जाता हूँ तो मैं कई सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, अब शेयर करने का टाइम मेरे ख्याल में नहीं है। नाउ each one of us, no matter they are leading what sort of life, by selling vegetables, by selling fruits, doing as a laborer, they all want to educate their children. ये बात समझ में आ गई, एजुकेट करना चाहते हैं। तो हम लोग इंक्लूजन की तरफ बेसिकली हैं, हम जा रहे हैं। हमें अपने एजुकेशन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना है, और इस बात की जरूरत है कि हम उसमें अपनी तरह से योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें एज ए टीचर। पूरी क्लास को, पूरे करिकुलम को हम बनाएं इंक्लूसिव। करिकुलम स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी इंक्लूसिव होना चाहिए, करिकुलम ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी इंक्लूसिव होना चाहिए, और फिर करिकुलम इवैल्यूएशन और असेसमेंट जब होता है, वहां पर भी इंक्लूसिव होना चाहिए। एट ऑल लेवल वी मस्ट बी इंक्लूसिव हमारे ख्याल में, है ना। सक्सेसफुल प्रोग्राम स्कीम्स की बात मैं करना चाह रहा था,
मैंने इशारा भी किया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, लाडली स्कीम है चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी शायद हमने ऑलरेडी कर ली है ना। टारगेटेड स्कॉलरशिप भी बहुत सारे स्कॉलरशिप पूरे 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 देश में चल रहा है। कुछ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं, कुछ प्राइवेट बॉडीज हैं, कुछ एनजीओज हैं, एंड कुछ बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अपना स्कॉलरशिप देती हैं। ये सारे के सारे जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, पूरे एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने में मदद करते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें हमारे ख्याल में 8-10 मिनट बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे अब खामोश हो जाना चाहिए और अब ओपन करना चाहिए, जिससे कि कुछ डिस्कशन हो सके और आपके एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीख सकें। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माय discussion, and with thanks to all of you for patient listening. Now I open this house for discussion and deliberation. You can share your experiences, you can ask question of any sort that you want to ask, and you can also share your experiences, your thought process, and whatever that you wish to share. Good Thank you, evening. sir. Thank you so much. Hello, good evening, Yes, sir. yes, yes. Sir, can you listen to me, sir? Share. Dr. Pinky. No, sir, I'm Dr. Veeru Rajbhar. Yes, Dr. Veeru, yes. Sir, I have a question. Sir, are you there in Delhi? Sir, do you really think that Indian dirty politics itself responsible are a barrier on the way of the attainment of equitable education in India? Actually, to ask this question, I have a purpose. Actually, you are in Delhi, and sir, Delhi government was doing very well in terms of school education. Yeah. But what happened? You can see the present scenario. What is going on there? And Sir, sir, I understand your question, Dr. Veeru. I understand your question very well. Let me answer your question. Your question is brilliant. Number one, politics is always responsible for each aspect of the society. Number one, कोई समाज का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो पॉलिटिक्स से अछूता रह जाए, है ना। तो पहली बात तो ये है, तो ये हमेशा ही पॉलिटिक्स तो हमेशा अपना असर डालेगी, लेकिन, है ना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसलिए जरूरी है कि हम अपने वोटर्स को एजुकेट करें। वोटर्स, अनलेस वोटर्स आर एजुकेटेड, unless they are able to take their own decision, you can't improve, your society. Yes, sir. That is very important. This is real need of education. और इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है ना, ऐसे मुल्क में कामयाब नहीं होती है जहां एजुकेशन नहीं हो। हमें याद आता है जब मैं बीएड कर रहा था, तो बीएड में मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, है ना, वो मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में अभी वो लाइव है। शी इज ए जर्नलिस्ट, डॉक्टर नीरजा शुक्ला, एक पता नहीं क्या नाम है, नीरजा करके कुछ है उनका नाम। वो स्टेटमेंट याद है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी थर्स्टेड अपॉन द हंग्री स्टमक। ये स्टेटमेंट थी। अरे बात सही है, डेमोक्रेसी कामयाब तब होगी जब वोटर एजुकेटेड होगा, अपना फैसला करेगा, वोट अपने रेशनल डिसीजन से डालेगा, किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं रहेगा। वो 100 रुपए में, 200 रुपए में, 1000-2000 में, या और जो है किसी मादी चीज की वजह से दिखेगा नहीं। So you are right, absolutely. Sir, one more question I have. Yeah. Sir, do you think that inclusive or equitable education is ever possible when there is a gap, there is private institutions and government institutions are flourishing together, and we can see that private institutions are doing much better and government institutions are not doing well, even though government institutions have better teachers or highly qualified teachers in comparison to the private institutions. देखिए डॉक्टर वीरू, there is nothing which is called impossible in the world. दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, इसलिए इंक्लूजन और इक्विटेबल एजुकेशन भी पॉसिबल है, एक बात। दूसरी बात ये कि प्राइवेट अगर अच्छा नहीं करेगा तो वो सस्टेन कैसे करेगा, है ना। जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो अगर अच्छा नहीं करेंगी तो उनके यहाँ आप भेजेंगे अपने बच्चे को आप। तो प्राइवेट अगर प्राइवेटाइजेशन रहेगा जो है ना, तो प्राइवेट एजुकेशन को, प्राइवेट स्कूल्स को बेहतर करना पड़ेगा, तभी बच्चे भेजेंगे आप स्कूल में, वरना भेजेंगे नहीं आप। तो इसलिए हमें लगता है कि दो अगर पैरेलल सिस्टम देश में चल रहा है और रहेगा, बहुत सारे कंट्रीज में है,
तो वो हमेशा उनको सस्टेन करने के लिए, उनको बने रहने के लिए उनको एक दो हाथ तो आगे रहना ही पड़ेगा, है ना। तो वो तो जाहिर सी बात है कि आप जितनी फैसिलिटी सरकारी स्कूल में देंगे उससे फैसिलिटीज को बढ़ा देंगे। वो पैसे भी लेते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास पैसे हैं, तो ये गैप तो बना रहेगा। लेकिन डिस्पाइट दिस गैप, एक बात तो पहली बात तो ये जो मैंने शुरू में इशारा भी किया, कॉमन स्कूल सिस्टम, तो आइडियली तो यही है कि दो तरह का सिस्टम काम ही नहीं करे, देश में एक तरह का सिस्टम हो, कॉमन स्कूल सिस्टम हो, नेबरहुड स्कूल सिस्टम हो। एक तो बात तो ये है, ये होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि डिस्पाइट ऑल दीज बैरियर्स, ऑल दीज गैप्स बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, आप देखेंगे कि ग्रोथ तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। क्वालिटी को ऊपर काम करने की जरूरत जरूर है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, एनरोलमेंट में एक्सटेंशन, वो सारे की सारी चीजें तो हो रही है। बैरियर्स हमेशा होती हैं और उसको हमें टैकल करना होगा। ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और कोई एनीबडी एल्स? यस, पार्टिसिपेंट एनी क्वेश्चन? कोई? मुझे लगता है सर कि योर लेक्चर वाज वेरी मच क्लियर एंड आई थिंक देयर आर नो मच मोर क्वेश्चन। Excuse me, sir. Participant? यस, Since nobody is वीरू साहब भी पूछ रहे हैं। चलिए, हाँ, यस sir, चलिए since nobody is asking जी, questions, so I have one more question. हाँ, वेलकम वेलकम बहुत वेलकम शुक्रिया वेलकम। सर आपका। Once Before again, I would like to thank you on behalf of HRDC NU Aligarh for your this very informative lecture, especially on this topic that is inclusive education, equitable education. It was a very detailed. I think because of this, participants are not able to ask question, and this is the need of ours, sir. I will say that, and very soon we are going to adopt in all kind of institution that is the inclusive education. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Saptar sir. Thanks to all the participants. Best wishes to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. It's a very informative lecture. Thank you. Thank you.